Hello everyone. Now let's see the next division in your plant kingdom. Third division, that is your division Pteridophyta. We have seen the division algae and bryophytes. उसके अंदर उनके classes, examples, उनका structure वगैरह हम देख चुके. Gametophyte, sporophyte, इस चीज से concept हमने पहली बार bryophyte में देखे. अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं pteridophytes, which are the next plants in the evolutionary history of plant kingdom. ओके अब आपको ब्रायोफाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिए तो आपको टेरिडोफाइट याद रखना है. ये एक हिंट याद रखो, ब्रायोफाइट्स के एग्जैक्ट अपोजिट कर दिया अगर आपने तो आपको टेरिडोफाइट बन जाएंगे. कैसे? सो व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, वहां से शुरू करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखते हैं और आपको लास्ट में मैं कंपेयर करके फिर से बताऊंगा ब्रायोफाइट वर्सेस टेरिडोफाइट, तो आपको ध्यान में आ जाए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेरिडोफाइट? एज द नेम सजेस्ट, टेरिडो एंड फाइटा. टेरॉन वर्ड कहीं पे भी आया तो समझने का फेदर्स और फर्न, फेदर्स और फर्न, पंख, पंख जैसे. अब इनके जो पत्तियां रहेंगी वो पत्तियां बहुत पंख जैसी दिखाई देंगी. लिटरली आपको ऐसे एक स्टेम, एक एक्सिस रहेगा और उस पे इधर से पत्ती रहेंगी और उसकी पैरेलल दूसरी पत्ती रहेंगी. सो पंख कैसे दोनों साइड में रहते हैं, एक एक्सिस के दोनों साइड में. सो देयर आर लीव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स. ओके, ऐसे दोनों तरफ से पत्तियां आएंगी. देयरफॉर दीज प्लांट्स are named pterons. इस वर्ड पे से आया. pteron means feathers and phyta means plant body. Phyta means plant body. So the plants which are having structure like this, for featherous structure or fern like structure, hence it is called pteridophyte. Okay, these are the plants which are cryptogams. They are cryptogams, means they do not produce fruit, seed, etc., but they produce spores. Okay, their sex organs are hidden. Sex organs are hidden. Okay, they don't produce fruit, seed, but they produce spores. Okay, cryptos मतलब hidden, gami मतलब plants, gamete producing hormone organs, they are hidden. Okay, they are first vascular plants on land. They are first vascular plants on land. जमीन पर पहले vascular plants थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. which are the first vascular plants on land? What do you mean by vascular? So vascular means presence of xylem and phloem. So they form vascular tissue or vascular bundles in plants. तो ये चीज दिखाई देना सबसे पहले शुरू हुआ pteridophytes. What are xylem and phloem? Xylem is the tissue, plant tissue. It is associated with conduction of water and minerals. Conduction of water and minerals. And phloem is associated with conduction of food. Conduction of food. अब प्लांट बॉडी जो रहती है वो एक जगह पे खड़ाली रहती है, एक जगह पे ग्रो होती है. दे आर नॉन मोटाइल. ओके, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स, दे हैव ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन देयर बॉडी. With the help of blood we can circulate water to all cells, minerals to all cells, nutritional elements, food, glucose with the help of blood circulatory system. But plants don't have such circulatory system. Plants में कोई circulatory system नहीं रहता. But they absorb water with the help of roots, and that water should be transported from roots up to the tip or the apex of that plant. ऊपर तक पानी पहुंचाना है. टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट प्लांट, आपको हर लिविंग सेल तक पानी पहुंचाना है. मिनरल्स, whatever minerals that were absorbed by roots from soil, so that minerals should be also transported up to each cell. नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, अलग अलग मिनरल जो भी रहेंगे वो हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा. ओके, दैट मिनरल एंड वाटर दे आर transported with the help of special cells known as xylem vessels, xylem tracheates, etc., and they constitute the xylem tissue. Similarly, whatever food is synthesized by leaves, so leaves will synthesize glucose by photosynthesis. That glucose will be transported to roots. It will be either stored into fruits or other storage organs, and that transport of food, sugar, will take place with the help of tissue known as phloem. Phloem, food, xylem, water and minerals. अब algae में इस टिश्यू की जरूरत नहीं थी क्योंकि algae ऑलरेडी पानी में रहती, तो उसको ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है.
फूड भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल वाज फोटोसिंथेटिक, हर सेल अपना फूड खुद बना रही थी, बिकॉज प्लांट बॉडी वाज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइट्स की भी हाइट 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं रहती, 1.5-2 सेंटीमीटर, इतने छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं वो एकदम उतनी हाइट तक पानी आसानी से कैपिलरी एक्शन से चले जाएगा, प्लस वो पानी के आसपास ही रहते तो उनमें भी जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं थी। फूड ट्रांसपोर्ट भी उनमें, हर सेल फूड बना लेती खुद का, तो वहां पे भी जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटे छोटे। लेकिन अब टेरिडोफाइट्स जो है, ये जो प्लांट्स है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, एटलीस्ट 5 फीट तक भी रह सकते, 7 फीट तक, 10 फीट तक भी हाइट रह सकती, कुछ तो इतने ऊंचे भी हो सकते। छोटे मोटे तो रहेंगे, 1 फुट 2 फुट के प्लांट्स तो रहेंगे टेरिडोफाइट्स, फर्न्स वगैरह, लेकिन कुछ की हाइट बहुत ज्यादा भी रह सकती। सो इतनी ज्यादा हाइट 5-1 फुट तक भी जाएंगे अगर इनकी हाइट, तो इतनी ऊंचाई तक अगर आपको पानी को पहुंचाना है ऊपर तक, तब आप नॉर्मल कैपिलरी वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, कैपिलरी फोर्स बाकी के फोर्सेस काम नहीं करते। जब हाइट बढ़ जाती प्लांट्स की, तो उनके अंदर वाटर कंडक्शन और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़े। जैसे अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही प्लांट में ब्लड नहीं रहता, लेकिन वस्कुलर टिश्यू रहता है, जिसको अपन बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन द चैप्टर नंबर 6। ओके, आपका एनाटॉमी चैप्टर जो है उसके अंदर देखेंगे। लेकिन अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अलगी में वस्कुलर टिश्यू क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत छोटे, उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टिश्यू का जो एम है वो ट्रांसपोर्ट करने की अलगी में जरूरत नहीं पड़ती, ना ब्रायोफाइट्स में जरूरत पड़ती। बट ड्यू टू हाइट, due to the plant body, size of plant body, pteridophytes need this tissue and therefore they show presence of vascular tissue, well developed vascular tissue. Okay, hence these are the first vascular plants on land. Okay, since they are cryptogams and there are 3 cryptogams, algae, bryophytes and pteridophytes, these are cryptogams, and gymnosperms and angiosperms, these are phanerogams. The first lecture, right? So algae, bryophyte, these are having no vascular, so these are non-vascular cryptogams. Algae and bryophytes, first lecture में आपको बताया था मैंने, they are non-vascular cryptogams, but pteridophytes are vascular cryptogams. ये MCQ आपको बहुत जगह मिलेगा। इनमें से कौन से प्लांट्स vascular cryptogams है? So pteridophytes, since they are cryptogams, but among the cryptogams, they are the only plants having vascular tissue. Hence, pteridophytes are called as vascular cryptogams. What is the name given to bryophytes? They are the amphibians of plant kingdoms. Amphibians of plant kingdom, plant T. And what are algae? They are thallophytes because they have simple thallus-like structure, very irregular structure, irregular mass of cells. So they are called thallophytes. Amphibians of plant kingdom. Vascular cryptogams, समझ रहे नाम कैसे पढ़े? These are non-vascular because they don't have xylem and phloem. समझा डिस्कशन? ओके, नेक्स्टली अगर आप आगे बढ़े, सो वस्कुलर क्रिप्टोगैम के बाद में अगर आप बढ़े, सो उनके हैबिट की बात आ जाती, तो कहाँ पे मिलते हैं ये हैबिट? इनका हैबिटेट देख लेते हैं, हैबिट नहीं हैबिटेट। सो दे अगेन ग्रो नियर मॉइस्ट प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी जो रहेंगी वैसी जगह पे आएंगे, ओके, जहां थोड़ा सा वाटर रिक्वायर्ड है। दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑल्सो सीन हियर। यहाँ पे भी आपको पानी लगेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सम ऑल्सो ग्रो वेल ऑन सम सैंडी सॉइल, कुछ तो डेजर्ट में भी आते हैं, जैसे कि आपके हॉर्स्टेल्स, इक्विसेटम, इट इज हॉर्स्टेल। अब आप नाम में से थोड़ा मीनिंग निकालो, हॉर्स्टेल क्यों बोलते हैं? घोड़े की पूंछ कैसी रहती? सो आपको जो फोटो दिख रही है इक्विसेटम की, अगर आपको आपने इसके प्लांट को उखाड़ दिए और उसको टर्न कर दिए, तो उसके जो कुछ पत्तियां इस तरीके से फैली वाली दिख रही, रिंग लाइक, ओके, सो वो पत्तियां पूरी एक झुंड बन जाती, झाड़ू जैसी हो जाएगी पूरी, और घोड़े की दुमची की जैसी, दुमची मतलब पूंछ, घोड़े की टेल जैसी दिखाई देंगी। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड हॉर्स्टेल्स, ओके। इक्विसेटम नाम याद रखो, इक्विसेटम, क्या सितम? इक्विसेटम। दे आर कॉल्ड हॉर्स्टेल्स। दे ग्रो वेल इन डेजर्ट लाइक कंडीशंस ऑल्सो, सैंडी सॉइल में भी आ जाता, बहुत उसमें डेजर्टिक एडेप्टेशंस आपको दिखाई देंगे, उनके ऊपर स्केली लीव्स रहेंगे, थिक रहेगा क्यूटिकल बहुत, वो सब चीजें अपन देखेंगे उनके बारे में। बट कुछ
गीले पानी की जगह पे आएंगे, मॉइस्ट जगह पे आएंगे, लेकिन कुछ सैंडी सॉइल में भी, थोड़े से ड्राई डेजर्ट लाइक एडेप्टेशन वाली जगह पे भी वो ग्रो हो सकते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स देयर ग्रोथ वाज लिमिटेड टू ओनली शेडी प्लेसेस एंड वाटरी एरियाज बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। इनको भी वाटर लगता, बट ये थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेंगे। इन्होंने अब जमीन पर रहना अच्छे से सीख लिए एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। इसलिए ब्रायोफाइट्स पानी की जगह के आसपास ही मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सूखी जगह पर भी आपको मिल सकते हैं। और यही तो अपने को चाहिए, अपने को लैंड प्लांट्स तैयार करने के, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स बनाना है, तो पानी में से लाइफ को जमीन पे लाए, लेकिन वो अभी एम्फीबियन जैसी रहेगी ब्रायोफाइट्स में, और अब वो थोड़ा सा और लाइफ जमीन पे रहने के लिए खुद को अडाप्ट करेंगी और वो टेरिडोफाइट्स बन जाएंगे। इसके बाद तो अब देखने का काम नहीं रहेगा जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट, वो तो जमीन पे रह रहे, किधर भी आ रहे, वो तो दीवार पे आते, जमीन पे आते, पत्थरों के बीच में आते, कहीं भी आ जाते एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, तो उनकी ग्रोथ अलग रहेगी, बट दे कैन ग्रो इन दिस एरियाज। Okay, they include two groups, your two major groups, horsetails and ferns. Horsetails and ferns such as your Nephrolepis, horsetails and ferns such as Nephrolepis. नेफ्रोलेपिस का पौधा तो आपने ऑर्नामेंटल प्लांट बोल के कई लोगों के गार्डन में भी देखा होगा, बड़े बड़े बंगले वगैरह, बैंक्स वगैरह के बाहर भी लगा रहता है ये नेफ्रोलेपिस, सभी ने देखा ही होगा, किसी के घर पे भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। यस, इफ इट इज देयर सो प्लीज डू ऑब्जर्व इट, अच्छे से देखो उसकी पत्तियां वगैरह, मैं जो स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ आपको क्या वहां पर वो दिखता है, ये अच्छे से देखो जरा प्लीज। नेफ्रोलेपिस बहुत आसानी से मिल जाता है अपने आसपास, एक बार का इक्विसिटिम नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बट नेफ्रोलेपिस बहुत कॉमन है। ओके, ऐसे ही रहते मार्सिलिया, अजोला, सेलाजिनेला। ओके, सेलाजिनेला बोल के एक है, मैं अभी थोड़े से नाम बोल दे रहा, आपको नाम याद होते जाएंगे धीरे धीरे। इसको संजीवनी बूटी बोलते, संजीवनी बूटी। ओके, इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां रहती है, इसको एकदम दिख रहा है कि आपको फोटो में। सो कैसे संजीवनी बूटी के जैसा इसको यूज करते हैं, मेडिसिनल यूजेस है इसके, लिटरली रामायण में जो संजीवनी बूटी थी ऐसा मानते कि ये वही थी। ओके, तो संजीवनी बूटी के नाम से बहुत चलती। सेलाजिनेला, सैल्विनिया है ऐसी बड़े पत्तियों वाली, मार्सिलिया, एजोला, सैल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। ओके, लाइकोपोडियम वगैरह है, लाइकोपोडियम, साइलोटम, सारे नाम लिख लो अभी बस, क्योंकि इनको बाद में क्लासिफिकेशन जब करेंगे अपन उसका फॉर्मूला बना के, एक आधे निमोनिक बना के उसको लर्न कर ही लेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये एग्जांपल्स है, दीज आर दी टेरिडोफाइट्स। आपको अब मैं सबके फोटोज नहीं डाला, एक दो के डाल दिया अभी, इक्विसिटम, फर्न्स और इनके। जैसे जैसे बात आएंगी तो अपन उनको फोटो के साथ उनको डील करेंगे, या फिर आप गूगल करके आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट इट्स हैबिटेट। नाउ इफ यू कम टू इट्स प्लांट बॉडी, सो प्लांट बॉडी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा टेरिडोफाइट्स आर अपोजिट टू योर ब्रायोफाइट्स। थोड़ा सा उल्टा कर देने का है, घुमा देने का है। अपोजिट क्या करना है अगर आपको याद होगा, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, इट इज फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट फेज। बट हियर जस्ट रिवर्स द कंडीशन, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। मतलब क्या, आपको जो प्लांट्स दिख रहे थे, ये इक्विसिटम, ये जो नेफ्रोलेपिस, मर्सिलिया, ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट नहीं है। इनके ऊपर गैमेट्स नहीं आते, इनके ऊपर स्पोर्स आते हैं। एग्जैक्ट रिवर्स कंडीशन। जबकि आपने मर्केंशिया वगैरह में, फ्यूनेरिया वगैरह में क्या देखा था, स्पोरोफाइट वाज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच डेवलप्स ऑन गैमेटोफाइट। Sporophyte was a small structure which develops on gametophyte, but here sporophyte is a dominant structure. Sporophyte is a dominant structure. So sporophyte consists of, it is diploid dominant free living, diploid dominant free living structure, and it has well distinct, well developed structures like your root, stem and leaves. Plus it also has structures called sporangia, which are the sac that produce spores. Okay, क्या रहता देखते हैं। It has roots, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक प्लांट, मैं नेफ्रोलेपिस ड्रॉ करके बता रहा हूं, तो उसको रूट्स रहेंगे। ओके, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम भी रहेंगे, कुछ ऐसे वर्टिकल काड़ा रहेंगी,
ओके और उनको पत्तियां भी रहेंगी ऐसी। अब मैं पत्ती ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं बट पत्ती का साइज आप देख चुके कैसा है। ओके इस तरीके से इधर से एक पत्ती, इधर से जस्ट लाइक दी फेदर्स। ओके इस तरीके से प्लांट रहेंगे। दिस इज योर नेफ्रोलेपिस। दे हैव रूट्स, stem and leaves, and at the apex of leaves or where on the back side of certain leaves, so two types of sporangia will be present, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग। एक और ड्रॉ करना, दिस इज नेफ्रोलेपिस, आपको एग्जांपल बताने के लिए दूसरा ड्रॉ करता हूं। इस पे स्पोरेंजिया का है, लोकेशन बताता हूं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दी ओके दिस इज योर इक्विसेटम। इक्विसेटम में यहाँ पे आपको सोलन स्टेम दिख रहा है, इट इज कॉल्ड राइजोम। जस्ट लाइक योर जिंजर, अदरक। अदरक कैसा रहता है, अपने चाय में अदरक जो डालते हैं अपन, तो वो अदरक कैसे ऐसे गांठ रहेंगे, वो एक स्टेम है, उसमें से फिर रूट्स आते हैं और उसमें से एक नई ब्रांच ऊपर जाती। फिर यहाँ पे आपको गन्ने की जैसी, शुगर केन के जैसे ऐसे नोड्स और इंटर नोड्स दिखेंगे। और एट द अपेक्स यू कैन सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, इट इज कॉल्ड कोन और स्ट्रॉबिलाई, स्ट्रॉबिलस। और पत्तियां देखो उसकी किस तरीके से ऐसी। अब आप बोलेंगे सर तो गन्ना है, अरे नालायक को गन्ना नहीं है, उसको भुट्टा भी आया वाला है। ऐसा कुछ नहीं है गन्ना वगैरह। इसकी पत्तियां ऐसी रहेंगी, पत्तियां भी एकदम छोटी छोटी ब्रांच रहेंगी ऐसी। देखिए बाकी का आपके सामने फोटो है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डायग्राम, स्टेट बोर्ड में भी सेम है। सो दिस इज योर इक्विसेटम। ओके अब इसके अंदर जो स्पोर रूट सबको दिख गई। राइजोम, व्हाट इज राइजोम? इट इज द स्टेम दैट स्टोर्स फूड, स्टेम दैट स्टोर्स फूड लिख लो वहां पे। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक योर जिंजर, एज वेल एज इट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेटरी ऑर्गन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या? अगर आपने राइजोम का टुकड़ा निकाल लिया यहाँ से और आपने दूसरी तरफ लगा दी, सो वहां पे एक नया इक्विसेटम का प्लांट आ जाएगा। जैसे अदरक, अदरक को भी अपन ने निकाल लिया तो दूसरी जगह लगा दी तो उसमें से नया प्लांट आ जाता। यू कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दैट राइजोम। सो ये भी एक प्रकार का राइजोम है, क्योंकि इसको रूट्स आते हैं। राइजा मतलब रूट्स, सो रूट्स आएंगे और उसको ब्रांचेस आके न्यू प्लांट बॉडी उससे आ सकती। सो राइजोम इनका एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मैकेनिज्म हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन के जैसा। सो राइजोम इज प्रेजेंट इन सर्टन टेरिडोफाइट्स, फॉर एग्जांपल योर इक्विसेटम। ओके सो रूट सब में है, स्टेम है काड़ी जैसा, दिस इज आल्सो द एक्सिस स्टेम, it is vertical stem here. Here the stem is very small, okay, and directly branches are produced, and not branches, leaves are produced. So scaly leaves will be there or green colored leaves will be there. Okay, अपने को स्ट्रक्चर में नहीं जाने का लीव्स की। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो दिख रहा है, दिस इज द स्पोरेंजिया, दिस इज द स्पोरेंजिया, where each sporangia is producing spores in it. ये जो एक सर्कल दिख रहा है, this is a small compartment in which spores are produced, and each compartment is known as sporangium, sporangium, और अनेक वचन उसका प्लूरल हो जाएगा sporangia. So what is sporangium? It is the compartment or the sac like structure in which spores are produced, in which spores are produced. How spore producing mother cells are here, spore mother cells are here, they undergo meiosis to produce haploid spores. Spore mother cells उधर भी थे and they produce haploid spores by meiosis, so spores are produced. But ऐसा एक sporangia नहीं रहता। इक्विसेटम की अगर मैं बात करूं, इक्विसेटम, so in इक्विसेटम you can see large number of sporangia are present here and they aggregate to form a cone-like structure known as strobilus. Cone-like structure known as strobilus. What is strobilus? It is the aggregation or the group of many sporangia in certain pteridophytes like equisetum, and they are known as strobilus or cones. So strobilus or cones are the group of sporangia. But on some other ferns, on some other pteridophytes, किसी और में, दूसरों में क्या होता? Sporangia do not form cones. Instead,
sporangia are produced on special leaves known as sporophylls. Sporophylls. कहीं पर भी फिल शब्द आया तो समझने का लीफ, उसका मतलब क्या याद रखने का, लीफ, लिख के रख लो। क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट, प्रेजेंट इन लीफ, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। सो वैसे ही स्पोरोफिल मतलब ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया आएंगे। फॉर एग्जांपल नेफ्रोलेपिस, अगर आपके पास नेफ्रोलेपिस का प्लांट है, सो प्लीज ऑब्जर्व इट, उसकी पत्तियां देखो। अगर आप उनकी पत्तियों के पीछे देखेंगे, ऑन द बैक साइड ऑफ लीव्स, अगर ये ऐसा पत्ता है तो उसके बैक साइड पीछे, सो ये पत्ती है। फॉर एग्जांपल एक काड़ी है, ये उसकी पत्ती इस तरीके से है, ओके, ऐसे उसको एक लाइन दिखाई देंगी। अगर आपने इस इधर से भी वैसी पत्ती है, एक लीफ है और उसको एक बीच में से लाइन, इस पत्ती को ऊपर से भी ग्रीन, नीचे से भी लाइट ग्रीन रहेगी। पत्ती को पलटा के देखे आपने, टर्न कर दी, तो टर्न करने के बाद आपको जो लाइन दिखाई देगी थोड़ी सी डार्क थीन लाइन, और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ब्राउन कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। और अगर आपने उस स्पॉट्स को हटाने की कोशिश, स्पॉट्स मतलब क्या है, वहां पे एकदम ब्राउन कलर के पतले पतले स्केली लीव्स है, ऐसे दो कवरिंग्स है, आपने अगर ऐसा रिमूव करे तो खुल जाएंगे, उसके अंदर से स्पोर्स बारीक बारीक ब्राउन कलर के माइन्यूट दाने निकलेंगे। तो ये जो है, दीज आर योर स्पोरेंजिया, दीज आर दी स्पोरेंजिया, दिस इज स्पोरेंजिया। समझ रहा फर्क क्या है? ऐसा हो सकता कि आपका जो स्पोरेंजियम है वो एक आधे कोन के जैसा एग्रीगेट होकर एक जगह पे रहेगा, या फिर पत्तियों के पीछे लीव्स के पीछे इस तरीके से स्पोरेंजिया के फॉर्म में अरेंज हुआ रहेगा। सो ये जो पत्तियां रहेंगी, स्पेशल लीव्स, सो दैट लीव्स bearing what sporangia, leaves bearing sporangia, so that leaves are known as sporophylls, leaves are known as sporophylls। समझा? So sporophyte क्या है? Sporophyte is the complete plant body which produces spores, okay, it has root, stem and leaves, and spore producing structures that are called sporangia। लिख के रखो डेफिनेशन, sporangia are the spore producing structure। Sporangia may be present on the back side of leaves, such leaves are known as sporophylls, or sporangia may be present in the form of groups in the cones or strobilus, as in case of your equisetum। समझ में आए? दो प्रकार के लीव्स, नेफ्रोलेपिस में स्पोरोफिल्स रहेंगे, यहाँ पे स्ट्रोबिलस रहेंगे। फंक्शन क्या है? बोथ विल प्रोड्यूस स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। ओके, अब स्पोर्स की बात कर लेते हैं। आज इतना ही देखना अपने को, गैमेटोफाइट की बात आज नहीं करने वाला हूं। अगर आज आगे बढ़ते इसमें, तो स्पोरोफिल्स विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरोफिल्स विल हैव स्पोर मदर सेल्स, स्पोरोफिल्स विल हैव, ये जो पत्ती थी इस तरीके से, ये पत्ती थी, इसके इधर एक स्पोरोफिल, इधर एक स्पोर, इसके अंदर मदर सेल्स है, ओके। मदर सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, दे विल अंडरगो meiosis to produce haploid spores because meiosis के बाद क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो जाएगा, एंड ईच मदर सेल, ये एक मदर सेल है, इसमें meiosis होगा, so it will produce 4 spores in the form of tetrad। टेट्रा मतलब 4, सो देखो एक दूसरे को जुड़े आ रहे वो 4 स्पोर्स, ओके। सो ईच मदर सेल विल प्रोड्यूस अ स्पोर टेट्राड, each mother cell will produce a spore tetrad, okay, and that spores will be released and new spores will germinate and form gametophyte। अभी तक इतना ही, अभी इतना ही याद रखना। Spores they will germinate on getting suitable condition to form gametophyte, अभी गैमेटोफाइट में नहीं जाने का, अभी सिर्फ स्पोर्स तक की बातें बता रहा हूं, और वैसे ही याद रखो, अदरवाइज कंफ्यूज होगा। स्पोर्स बन गए, स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर्स किससे बने? मदर सेल से, बाय मियोसिस। एक मदर सेल से कितने स्पोर्स? 4, हेंस इट इज कॉल्ड टेट्राड। टेट्रा मतलब 4 स्पोर्स फ्रॉम वन मदर सेल, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेट्राड। ईच स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेट, ओके। समझ में?
नाउ नेक्स्टली अगर इसके अंदर और एक बात करें तो स्पोर्स मे बी ऑफ सेम साइज, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं सो हो सकता है वो सेम साइज के स्पोर्स है, सो सच स्पोर्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स, होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन। और समटाइम्स स्पोर्स विल बी डिफरेंट इन साइज, कुछ स्पोर छोटे रहेंगे, कुछ स्पोर छोटे रहेंगे, ओके, और कुछ स्पोर बहुत बड़े रहेंगे। सो जब दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं तो उसको बोलने का हेटेरोस्पोरस कंडीशन। क्या बोल रहा हूं मैं अभी स्पोर्स में, गैमेट विमेट में नहीं जाने का, अभी वी आर ऑन स्पोर्स, स्पोरोफाइट की बात कर रहा। तो ये जो पत्तियां है, ये जो पत्तियां बताया था अभी तुमको, सो अगर उन पत्तियों को अगर आपने बैक साइड से ऑब्जर्व करें ठीक से, तो ये एक ब्रांच है, यहां की एक पत्ती ले लो, ओके, सॉरी, ये दूसरी पत्ती, तीसरी, ओके। तो क्या होता, यहां के जो स्पोरोफिल्स है, एक दो, इधर के एक दो, इधर के इधर के। अभी देखो क्या होता, कुछ पत्तियों में मैं ब्लू कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूं वो अलग है, सबके सब स्पोरोफिल्स है। व्हाट आर स्पोरोफिल्स? द लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया, लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया, मतलब इसमें भी स्पोर बनेंगे, इसमें भी स्पोर बनेंगे। लेकिन कुछ स्पेशीज में ऐसा होता कि यहां पे बनने वाले स्पोर्स, यहां पे बनने वाले, यहां पे बनने वाले, यहां पे सभी स्पोर्स एक साइज के रहते, सब छोटे छोटे रहेंगे, सब बड़े बड़े रहेंगे। तो सभी का जब साइज सेम रहेगा, सच प्लांट इज नोन एज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बिकॉज ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज। But there are many pteridophytes which produce some small spores and some produce large sized spores. Small ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, small spores यहाँ पे, okay, small spores are produced here and large spores are produced in other sporangia. यहाँ पे थोड़े बड़े spores बनाने, यहाँ पे थोड़े बड़े स्पोर्स बनाने, ठीक है। समझ में आ रहा फर्क क्या है? कुछ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स रहेंगे, some pteridophytes are heterosporous. What do you mean by homosporous? They produce all same sized spores, whereas some will produce small sized spores, different sized spores, some are large and some are small, okay। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे माइक्रोस्पोर, और ये बड़े बड़े स्पोर्स हो जाएंगे मेगास्पोर्स। माइक्रो मतलब छोटे, मेगा मतलब बड़े, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। और अब ये जो स्पोरेंजिया हो जाएंगे तो इन स्पोरेंजिया क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये जो पत्ते रहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, और ये जो बड़े, जिसके अंदर बड़े स्पोर्स तैयार हो रहे हैं, ये पत्ते को क्या बनेगा? मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, जिसमें अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, अलग अलग साइज के स्पोर्स बनेंगे, वो टेरिडोफाइट को बोलने का हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, बिकॉज देयर आर सम स्मॉल साइज्ड स्पोर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड सम आर लार्ज साइज्ड स्पोर्स कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। सच टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ओके। आपको इसके एग्जांपल्स दिया है एनसीईआरटी में, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, ये दोनों में होमोस्पोरस कंडीशन है, जबकि सेलाजिनेला और सैल्विनिया, इनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन। इनमें दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जिनमें आपको मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे, जबकि इनमें होमोस्पोर्स है, सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे रहते हैं अलग अलग प्रकार के स्पोर में। तो एक जैसे स्पोर रहेंगे तो उनके जैसे, उनसे बनने वाले गैमेटोफाइट्स भी एक जैसे रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। लेकिन इनमें क्या होगा? दो अलग अलग प्रकार के स्पोर रहेंगे, उनसे मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, और फिर उनपे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तैयार है, ओके। ये क्या है, ये बाद में ध्यान में आएगा, लेकिन अभी स्पोर वाली कंडीशन समझ में आ रही क्या? व्हाट इज स्पोरोफाइट? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, उसके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, दे आर आइदर प्रोड्यूस्ड इन कोन्स और प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल लीव्स नोन एज sporophylls, okay। Spores may be of two types, either they are similar in size or in different in size. When they are similar in size, that plant is known as homosporous pteridophyte,
as in case of Dryopteris and Adiantum, or when the spores are of different size, smaller spores, microspores, and larger spores, megaspores, that pteridophyte is known as heterosporous. For example, Selaginella and Salvinia. Selaginella and Salvinia. Okay, these sporophytes in heterosporous condition, the sporophylls are of two types, microsporophylls and megasporophylls, because two different spores will be produced on two different mega and microsporophylls. Okay, खत्म हो गया स्पोरोफाइट का डिस्कशन. रूट समझ में है, इसके स्टेम समझ में है, स्पोरोफिल समझ में है. लास्टली लीव्स क्या रहते हैं. सो अब ये तो हो गए स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स. जो दूसरे लीव्स रहते, सो लीव्स नॉर्मल लीव्स भी रहते हैं, इनको नॉर्मल लीव्स, ग्रीन कलर के नॉर्मल लीव्स रहेंगे. ये जो ऐसा स्टेम दिख रहा, ओके, इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां दिख रही, देखो ऐसी सेल्वे आपके सेलाजिनेला के ऊपर आपको ग्रीन कलर की पत्तियां दिख रही है. सैल्विनिया पे देखो बड़े बड़े पत्तियां है ऐसी, और नीचे से ऐसे रूट जैसे, और रूट्स को भी फिर से छोटी छोटी पत्तियां है, हेयर लाइक लीव्स है. देखो ये एनसीईआरटी में फोटो दिया है आपको. सो हो सकता है कि उनको बड़े बड़े पत्ते हो, तो बड़े पत्ते रहे तो उसको बोलेगा माइक्रोफिल्स. मैंने अभी बताया फिल्स मतलब लीव्स. अब ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि इस पे स्पोर आने वाली पत्तियां है. लेकिन ये सिर्फ माइक्रोफिल्स है, इन पे स्पोर नहीं आएंगे. दे आर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स. दोनों में डिफरेंस ध्यान में रहा. माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोर आएंगे, इन पे स्पोरेंजिया नहीं रहेगा, ये प्लेन पत्तियां रहेंगी, नॉर्मल पत्तियां रहेंगी. इसके लिए इनको सिर्फ मैक्रोफिल्स, ये बड़े बड़े पत्ते हैं ना, बड़े बड़े साइज में. और ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इनको बोलेगा माइक्रोफिल्स. लीव्स कितने प्रकार के रहेंगे अपने पास, दो टाइप के लीव्स रहेंगे इनके. either large small sized leaves as in case of Selaginella, or large sized leaves as in case of Salvinia. okay, ये क्या है, hair like leaves. अभी पानी के ऊपर ऐसा फ्लोट होते रहता है सैल्विनिया. इसके जो बड़े पत्ते रहेंगे ऊपर रहेंगे, और बारीक बारीक जो पत्तियां है उसको जमीन पानी के अंदर तैरते रहेंगी, छोटी पत्तियां. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग फर्न. तैरने वाले टेरिडोफाइट है ये. ओके, पानी के ऊपर रहते टेरिडोफाइट, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है सैल्विनिया. सैल्विनिया. पहले तो शब्दों के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे शब्दों के ऊपर ही पूरी चीज है. पहले तो स्पोरोफिल वगैरह जो शब्द है वो स्पोर प्रोडक्शन से रिलेटेड है. अगर सिर्फ नॉर्मल फिल शब्द आया तो वो नॉर्मल लीव्स है. माइक्रोफिल्स आर द स्मॉल लीव्स प्रेजेंट इन योर सिलाजिनेला, and macrophyls are the large sized leaves present as in case of your ferns, floating fern, that is your Salvinia. संजीवनी बूटी में छोटे छोटे पत्ते, सैल्विनिया में फ्लोटिंग फॉर्म में बड़े बड़े पत्ते. इनके ऊपर स्पोर्स नहीं रहते, प्रोडक्शन स्पोरेंजिया नहीं रहते, इसके लिए नॉर्मल लीव्स है. जिन पे स्पोरेंजिया रहेंगे वो स्पोरोफिल्स रहेंगे, या तो वो मेगा स्पोरोफिल्स रहेंगे या माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेंगे. बट इन हेटेरोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस में तो सबके सब पत्तियां एक जैसी रहेंगी, सबका नाम स्पोरोफिल्स रहेंगे. ओके, सो यहाँ पे आपको इतने सारे एग्जांपल्स है, ये चीजें हैं. थोड़ा सा टेरिडोफाइट कंफ्यूज होता, बस देखते चलो. मैं जो बोल रहा हूँ पहले स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर समझा के देखो, फिर गैमेटोफाइट में अपन जाएंगे. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. वी विल सी द गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ योर टेरिडोफाइट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.